Exercise 11.2, question number 2. One line DRS A and B points are given 1, -1, 2 and 3, 4, -2. So DRS of AB 3, -1, 4 + 1, -2, -2, 2, 5, -4. These are the DRS of AB. Similarly, DRS of CD, this is C and D. C and D points are given 0, 3, 2, 0, 3, 2 and 1, 2, 5. 1, 2, 5. So DRS of CD 1, -0, 2, -3, 5, -2 means 1, -1, 3. Now using A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. LHS A1 A2 2 into 1, B1 B2 5 into -1, C1 C2 -4, C1 C2 -4 into 3. Three -1, 2, 4 + 1, -2, -2 are correct. Then points 3, 5, 6. Okay, points are wrongly written 0, 3, 2 and 3, 5, 6. Sorry, these points are 3, 5, 6. That's why not getting the correct answer. 3 -0, 5 -3 and 6 -2. Okay, so this is 3, this is 2 and this is 4. So 2 into 3, 5 into 2, -4 into 4. You will get here 6 + 10 -16. 16 -16 equal to 0. Therefore, lines are perpendicular. ये कंडीशन होती है ना, लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो डीआरएस के प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए. A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0. Question number 6. Because question number 2, 3, 4, 5, question number 3 to 5 try, because directly based on formula, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है. और 6 करूंगा तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा. 2, 3, 5. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5. देखो क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि -2, 4, -5 से एक लाइन पास हो रही है. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए. ओके, वन पॉइंट फॉर्म with position vector. Find the equation of the line in vector and in Cartesian. दोनों फॉर्म में फाइंड करना है. नहीं, find the Cartesian equation of the line which passes through the point -2, 4, -5 and parallel to the line. ये लाइन एक लाइन के पैरेलल दे रखी है. गिवन लाइन है, गिवन लाइन है और ये रिक्वायर्ड लाइन है. गिवन लाइन इज x + 3/3, y - 4/5 and z + 8/6, y - 4/5, z + 8/6. इस लाइन के डीआरएस क्या होंगे? डीआरएस ऑफ गिवन लाइन 3, 5, 6, इसके डीआरएस, ये जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो डीआरएस होते हैं, कि आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं थ्योरी में. ओके, डीआरएस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी 3K, 5K, 6K. अगर लाइंस पैरेलल होती है तो डीआरएस रेशियोज में होते हैं, इसलिए हमने ये लिख दिया 3K, 5K, 6K यूजिंग दिस फॉर्मूला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2. ये यूज किया है मैंने. यूजिंग दिस रिजल्ट, therefore required
line will be, one point is given and DRS we have, so x minus x1, so x minus minus 2 upon x1 3k, y minus 4 upon 5k, and z plus 5 upon 6k. Or you can write x plus 2 upon 3 equal to y minus 4 upon 5 equal to z plus 5 upon 6 equal to k. This is the answer. This is the required line. Please take the screenshot. I don't think there will be any doubt. Direct formula based question. Only the thing that you have to think here, that when the lines are parallel, their DRS are in proportion. Question number 8. Find the vector and Cartesian equation. Vector form, Cartesian form, दोनों ही find करने, VFCF. Cartesian equation of the lines passes through the origin and 5 minus 2 3 means 0 0 0 and 5 minus 2 3. हमें ये लाइन फाइंड करनी है. So equation of line in 2 points form, vector form, r vector equal to a plus t b minus a, 2 point form of line. फॉर्मूला है अपने पास. तो r वेक्टर तो एज इट इज लिखेंगे. a वेक्टर मतलब ये फर्स्ट पॉइंट, इसको हम लिख देंगे 0i प्लस 0j प्लस 0k. t टाइम्स b माइनस a, ये b वेक्टर है, दिस इज b वेक्टर एंड दिस इज a वेक्टर. सो 5i माइनस 2j प्लस 3k, 5i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 0i प्लस 0j प्लस 0k. मैं पूरा स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि a वेक्टर और b वेक्टर क्या है. सो r वेक्टर इक्वल टू, यहां पर ये सब जीरो हो जाएगा, t टाइम्स 5i माइनस 2j प्लस 3k. 1 मार्क क्वेश्चन है, ओनली 1 मार्क. डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन. ऊपर के ही 2-3 क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं वो भी ऐसे ही है, 2 पॉइंट फॉर्म 1 पॉइंट फॉर्म डायरेक्ट लगाना है, इसलिए छोड़ दिए वो. आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आगे के क्वेश्चन में वो ऑलरेडी हो जाएंगे. ये वेक्टर फॉर्म लिखा है मैंने. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म, x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1 इक्वल टू लेमडा. ये लिखते हैं ना. तो x माइनस x1 मतलब ये 0, x2 माइनस x1 5 माइनस 0, y माइनस 0, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 0, z minus z1 0, z2 minus z1 3 minus 0 equal to lambda. So the answer is x upon 5, y upon minus 2, z upon 3 equal to lambda. ये दोनों आंसर हैं इसके. इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म था ये, यूजिंग 2 पॉइंट्स फॉर्म. एनी डाउट? कृतिका सग्रावत लेफ्ट. देखते हैं वापस कितनी देर में आती है कृतिका सग्रावत. ठीक है, Kritika Sagrawat join. Next, find the angle between the following pair of lines.
एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस की थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है और बोला था कि ये सिलेबस में से हटा दिया, लेकिन फिर भी थ्योरी पढ़ाई थी क्योंकि यूज हो सकती है कहीं पर भी, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आप स्किप कर सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, इट इज नॉट इन द सिलेबस, एम आई राइट? Just see, it was written, I think, angle between lines, angle between planes is not in syllabus. So, question number 10, 11 you can leave. डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है, वैसे ये क्वेश्चन हम कहाँ कर चुके हैं, फिर आपको बताऊंगा मैं, डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। शुभ गोयल लेफ्ट, फोन आ गया, फोन, शुभ गोयल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया शायद, शुभ गोयल। शुभ गोयल ज्वाइन, स्क्रीनशॉट ले लिया। कृष्णा टिलवानी वापस ज्वाइन। आना जाना चलता रहता भैया तुम लोगों का, है ना? सर नेट खत्म हो गया था। कॉल आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहे हैं आजकल तुम लोगों के। क्वेश्चन नंबर 10 and 11 you can skip. Question number 12, find the value of p so that these lines are at right angles. Given lines are at right angles, that means a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, देखो ये तो यूज हो रही है, एंगल बिटवीन में ही तो यूज होगा, ये भी वाला क्वेश्चन। तो 10 और 11 भी आप कर ही लेना, कोई डायरेक्ट तो क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है, पर ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 11 12 की जगह 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी की वैल्यू फाइंड करनी है। लाइन 1, 7 minus 7x upon 3p. Just see how it is written and how I will write after writing in the standard form. I will write it x minus 1 upon 3p by 7. मैंने -7 कॉमन ले लिया इसमें से, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो -7 कॉमन ले लिया और उसको डिवाइड में लिख दिया। ऐसे यहां पर नो चेंज, बट यहां पर फिर मैं क्या लिखूंगा, z माइनस 6 अपॉन -5। तो इसके जो डीआरएस हैं वो क्या बनेंगे, डीआरएस क्या आएंगे इसके, -3p by 7 1 -5, ये आपके a1 b1 c1 हो गए। लाइन 2, इंपॉर्टेंट चीज यही है इसके अंदर, हाउ टू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हर्ष धाकड़ ज्वाइन किए, अब हर्ष धाकड़ ने अभी ज्वाइन किया है, इससे पहले वो क्लास में नहीं थे। शुरू से ही है, ठीक है। 7, ये लाइन 2 इसको दे देता हूं मैं। लाइन 2 है हमारे पास, कौन सी इक्वेशन लिख दी यार मैंने, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ठीक है सही लिखा है, बट इक्वेशन 2 को फर्स्ट नाम दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 माइनस एक्स, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन 1 2 है, 2 1 लिख दिया तो 2p। क्वेश्चन इतने पास पास लिख रहे हैं इसमें कि ऊपर नीचे हो जाती है इक्वेशंस, सब एक जैसे क्वेश्चन है। लुक हियर, इसमें भी मैं क्या करूंगा, ऐसे फर्स्ट आई विल राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, -3 आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा इधर 7 कॉमन ले लूंगा, y माइनस 2 2p अपॉन 7, 7 से डिवाइड कर देंगे y के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए, एंड z माइनस 3 अपॉन 2। इसके डीआरएस क्या आएंगे, -3 2p अपॉन 7 एंड 2, मतलब ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, बाय 1 2 3 बाय 1 2 3, 1 2 3 का मतलब है 1 2 और 3, 1 में 2 और 3 से वैल्यूज पुट करते हैं हम। डीआरएस -3p by 7
उसका मल्टीप्लाई किस में होगा, -3 प्लस B1 1 A1 A2 प्लस B1 B2 1 इंटू क्या लिखेंगे हम, 1 इंटू 2p/7 C1 C2 -5 इंटू 2 इक्वल टू 0। (9p minus 10p 9p plus 2p 9p plus 2p इक्वल टू 10 इंटू 7 एलसीएम ले लिया मैंने, सही लिख रहा हूं, कोई डाउट? स्टेप्स राइट है। 9p/7 2p/7 11p/7 हो जाएगा और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 10, तो 70/11 ये आंसर है क्या, चेक करें। थोड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है बट ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो तो लिखना ही है अगर सब सही है तो। p इक्वल टू सही आंसर क्या है हमारा, चेक करें आंसर नमन। करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 15 16 आर सिमिलर। 14 15 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, कल थ्योरी पढ़ाई मैंने आपको, गुड। Find the shortest distance between the lines from given lines में A1 वेक्टर लिख रहा हूं, देखो जो गिवन लाइन से, एक्सरसाइज कौन सी थी 11.2, ठीक है 11.2 का क्वेश्चन, गिवन लाइन से A1 लिख रहा हूं, I + 2j + k, I + 2j + k, A2 वेक्टर सेकेंड लाइन से 2i - j - k, 2i - j - k, B1 वेक्टर इक्वल टू I - j + k and B2 vector equal to 2i + j 2i - j + 2k. You can see here B1 and B2 are not parallel, otherwise shortest distance word use नहीं होता है इसमें। Find the shortest distance. The formula for the shortest distance, we need A2 - A1, A2 - A1 I - 3j - 2k and B1 cross B2, B1 cross B2 is ijk, determinant form B1 1 -1 1 and B2 is 2 - 1 2, 2 - 1 2, I -2 + 1 minus j 2 - 2 plus k -1 + 2 -1 + 2, using the determinant, expansion of the determinant first with respect to the first row, you will get -i plus 0j plus k. Now formula is shortest distance between two skew line is A2 - A1 dot
B1 क्रॉस B2 होल अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, दिस इज द फॉर्मूला। तो देखो A2 माइनस A1 ये तैयार कर लिया हमने। B1 क्रॉस B2 is required, so already find B1 cross B2 and its mod. This is B1 cross B2. Modulus of B1 cross B2, how to find? -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, so this is √2. Now A2 minus A1 is I minus 3j minus 2k, I minus 3j minus 2k with mod डॉट B1 क्रॉस B2 कितना है देखो, B1 क्रॉस B2 माइनस आई प्लस 0j माइनस आई प्लस 0j प्लस 1k होल डिवाइडेड बाय √2 मॉड B1 क्रॉस B2। इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, I डॉट I 1 होता है, ये 0 हो जाएगा और ये -2 अपॉन √2 विथ मॉड, सो 3√2/2 इज द आंसर। चेक करें, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 3√2/2 और 3/√2। प्लीज चेक द आंसर नमन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। चेक करें आंसर नमन। नमन आप आंसर चेक कर लिया करो, समटाइम मेरे से क्या एल्जेब्रिक मिस्टेक हो जाती है और फिर आप बाद में बोलेंगे सर आपने आंसर ऐसे ही लिखा था, तो हमने तो वही किया, हमने अपना सेंस यूज नहीं किया। समटाइम छोटी छोटी बातें सोच लिया करो, कभी अगर ऐसी सिली मिस्टेक हो जाए मुझसे तो आप खुद भी करेक्शन कर सकते हो। मुझे भी पता है, कोई इतना रटते थोड़ी है, हम अपनी मर्जी से ही करते हैं ना क्वेश्चंस, तो एग्जाम में समझ रहे हैं हम चीजों को, नंबर कुछ भी आ सकते हैं, तो सिली मिस्टेक पॉसिबल हो सकती है हमसे भी। क्वेश्चन ही रॉन्ग कॉपी कर लिया, ऐसा कभी कुछ हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, चेक कर लिया करो। ऐसा 2-3 बार हुआ है पिछले दिनों में। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. From the given lines, it is in Cartesian form. From the given line, x1 equal to -1, y1 equal to -1, and z1 equal to -1. a1 equal to 7, b1 equal to -6, and c1 equal to 1 by 1. Now by 2, x2 equal to 3, y2 equal to 5, z2 equal to 7 from the given line, and a2 equal to 1, b2 equal to -2, and c2 equal to 1. The question is written in the NCERT book, so I am not writing the question here. In place of the writing the question, I directly written what is x1, x2, x1, x1, y1, z1, x2, y2, z2, a1, b1, c1, x, and a2, b2, c2. Now to find the shortest distance, we need to find x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 with a1, b1, c1, a2, b2, c2 determinant divided by Lagrange's a1 b2 minus a2 b1 whole square summation, this d by l बताया था ना डोमेस्टिक लाइन। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो हम x2 माइनस x1 मतलब 3 + 1, y2 minus y1 5 + 1, z2 minus z1 7 + 1, a1 b1 c1 7 minus 6 1 1, a2 b2 c2 -2 1 होल डिवाइडेड। यहां देखना, अब ये टर्म जो लिखी जाती है लग्रांजेस किस तरह से लिखी जाती है, हमको ऐसे लिखना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, फिर उसका स्क्वायर करना है। मतलब 7 × -2 माइनस 1 × -6 इसका स्क्वायर प्लस -6
इंटू 1 -2 इंटू 1 इसका स्क्वायर प्लस ये मतलब होता है सिग्मा का समेशन का, दिस इंटू दिस स्क्वायर, दिस इंटू दिस स्क्वायर माइनस के साथ में। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन जो करते हैं ना आपको पता ही। देन अभी एक और टर्म आएगी ना, 3 टर्म आएगी। 7 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा अभी? 7 इंटू 1 एंड -1 इंटू 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने में अगर हमसे मिस्टेक हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज ये एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। 4 6 8 7 -6 1 1 -2 1 होल डिवाइडेड रूट में। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं। -14 प्लस 6 -14 प्लस 6 8 -8 का स्क्वायर 64 -6 प्लस 2 -6 प्लस 2 4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 -1 6 का स्क्वायर 36। डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। 4 इंटू -6 प्लस 2, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहा हूं। -6 प्लस 2 ऐसे टर्म यही आती है ना, आपको पता है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से लिखेंगे क्योंकि इनका इसका मल्टीप्लीकेशन भी होता है 4 6 8 का। तो 4 इंटू -6 प्लस 2 -6 इंटू 7 -1 प्लस 8 इंटू -14 प्लस 6 होल डिवाइडेड विथ, ये मॉड चल रहा है, ध्यान रखना इसमें मॉड तो लगाना ही है आपको। रूट में 6 116 आएगा। न्यूमरेटर में कितना आएगा टोटल इस स्टेप के बाद? 2 -6 -4 -16 7 -1 7 -1 6 -36 एंड -64 -14 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय रूट 116। जो हम कर रहे हैं वो कैलकुलेशन है प्लस माइनस वाली, और वो गलती होने के चांस है इसमें। 116 रूट 116, सो द आंसर इज रूट 116। चेक कर लेना आंसर, रूट 116 आ रहा है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एलजेब्रा करिए, मैंने देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह से आता है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, रूट 116 को सॉल्व कर दिया है। 58 इंटू 2, 58 को 29 मतलब 2 रूट 29, 2 रूट 29 लिख दिया होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, 2 रूट 29 लिखा हुआ। पहले वाला डिलीट। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट, नो 17, क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन लिख लेना, इसमें गलतियां होती है एग्जाम में। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन। आर वेक्टर इक्वल टू, मैंने एग्जांपल तो शायद कल ही बोल दिया था इसका, एक पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का एग्जांपल कल बोल दिया था, यस और नो? कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना। एग्जांपल कौन सा एग्जांपल नंबर था वो मैं बता देता हूं एक बार फिर, वैसे तो कल मैंने शायद बोला है। हाँ,
एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 476, कल बोला है मुझे याद आया। इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है ना वेक्टर फॉर्म में ही है, क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही है, 14 16 17 सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 16 17 सिमिलर है। तो 14 मैंने किया, पर 17 क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जो कांस्टेंट है उसको इधर उधर डिस्टर्ब कर दिया है उन्होंने। लेमडा म्यू जो है ना वो अलग अलग एस और टी लिख दिए हैं, लेकिन वो भी अलग अलग कर दिए हैं। मतलब एस का मल्टीप्लाई इधर उधर, मतलब अपने को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस whose वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन 1 minus t with I plus t minus 2j plus 3 minus 2t k. This implies first you write it by 1 से लिखा है इक्वेशन 1, r वेक्टर इक्वल टू I minus 2j plus 3k विदाउट t और t वाली टर्म एक साथ, विथ t एंड विदाउट t। तो विथ t विदाउट t लिखा, विथ t में माइनस i आएगा, प्लस j आएगा, माइनस 2k आएगा। सो दिस इज a1 वेक्टर एंड दिस इज b1 वेक्टर, ओके, बाय 2। r वेक्टर इक्वल टू s प्लस 1 i 2s माइनस 1 j माइनस 2s प्लस 1 k। इसमें विदाउट s वाली टर्म पहले लिखते हैं, i माइनस j माइनस k प्लस विथ s के साथ में जो टर्म आएगी i प्लस 2j माइनस 2k, माइनस 2 है बाहर, ध्यान रखना, माइनस 2 माइनस 2k। सो दिस इज a2 वेक्टर एंड दिस इज b2 वेक्टर। नाउ फाइंड a2 माइनस a1, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, i माइनस i 0i प्लस j माइनस 4k एंड b1 क्रॉस b2 फाइंड करेंगे i j k से। b1 क्या है आपके पास, -1 1 -2, और b2 क्या है 1 2 -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, i के साथ में -2 प्लस 4, j के साथ में माइनस माइनस प्लस 2 2 प्लस 2, और k के साथ में -2 -1। सो दिस इज 2i माइनस 0j माइनस 3k। इसका मॉड ले लो, मॉड b1 क्रॉस b2, 4 प्लस 0 प्लस 9 रूट 13 आएगा। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 होल अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। फॉर्मूला a2 माइनस a1 का b1 क्रॉस b2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, 0 0 12, ये b1 क्रॉस b2 है ना, ये और ये, इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट लो आप, 0 आ जाएगा, इसका इसके साथ में 0, इसका इसमें 12 हो जाएगा, और डिवाइड में रूट 13। क्या 12 बाय रूट 13 आंसर आ रहा है, चेक करें, 12 बाय रूट 13। रॉन्ग है, कहीं मिस्टेक लग रही है, कहां मिस्टेक हुई है, 2 प्लस 2 4 आएगा, कहां पर, कहां पर 2 प्लस 2 4 आएगा,
हेलो, यहां पर -2 +4, -2, अच्छा 2 +2, यहां पर 4j आएगा। सही है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो ये 29 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 29 आएगा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0, -4 हो जाएगा यहाँ पर, और +12, 12 - 4 8, 8/√29 आ रहा है क्या? 8/√29। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द अटेंडेंस। कल हम प्लेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, प्लेन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको क्लास लीव नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया मार्क, अनिमेश, लीव मीटिंग।